Okay, so today we are going to discuss half-yearly exam paper and the question of physics, especially the question of physics that came in the exam. You know that question number 4, question number 5, question number 6, 7 and 13. Question number 6, 7 and 5 also. Question number 5, 13 and question number 4. These are of 1 marker question that are of physics part. Similarly, question number 22, 23 and 24. These are of 3 marker question. Question number 29 and 30 were of 5 marks. पेपर बहुत क्लियर था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो बहुत टफ था. 1 मार्कर क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत गलतियां करी हैं. आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा ही नहीं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. सो वी आर स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 was a paragraph question in which you are given information about electromagnets and how they are known as temporary magnets. Why soft iron is good for making electromagnet instead of steel. So the first question which was asked, it has 5 parts. So you all have A, B, C, D. So sorry, 4 parts A, B, C, D. Each part is of 1 mark. The first question was write some of the important uses of electromagnets. इसका तुमको आंसर पता है? 1-2 बच्चे ऐसे हैं शायद 10th B में जिन्होंने ये पूरा क्वेश्चन ही मिस कर दिया, क्वेश्चन नंबर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं किया. तो ऐसा तो इतना कुछ में डिफिकल्ट था नहीं, पूरा आपको पैराग्राफ में सब कुछ दिया हुआ था आंसर्स में. सो यू हैव टू जस्ट अटेम्प्ट इट. सो जस्ट टेल मी व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स. इलेक्ट्रिक वेल्स, और मैंने आपको कल ही बताया था व्हेन आई वाज टीचिंग यू कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स. When I was teaching you commercial electric motors, I have already tell you about that. Commercial electric motors also uses what? Yes, electric motors also use electromagnets in place of permanent magnets. क्योंकि permanent magnets are very heavy and they are very costly. तो और उनका कोई इतना as per हम इतना अगर कोई small या short term use के लिए कोई डिवाइस यूज करना है तो हम लोग हर जगह परमानेंट मैग्नेट्स यूज नहीं करते हैं. वी जस्ट यूज द मैग्नेट्स एज पर आवर कन्वीनियंस. तो हम लोग क्या करते हैं, वी यूज जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बिकॉज दीज आर टेम्परेरी मैग्नेट्स. वंस द करंट इज नॉट फ्लो इन द सर्किट, दीज मैग्नेट्स जस्ट बिहेव लाइक अ आयरन रॉड. ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बहुत यूजेस है. जिन्होंने लिखा है लाउड स्पीकर, आई हैव सीन द आंसर, सो मेनी आंसर्स आर केम. So most of you have done it correctly. But 1 or 2 student does not have even attempt the question. Now B part. The answer of B part is also mentioned in the paragraph. State the factors on which the strength of an electromagnet depends. And how does it depends on these factors? It is given that the strength of electromagnet is directly proportional to the number of turns in the coil and it is directly proportional to the amount of current flown into the circuit. Clear? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट वाज एक्सप्लेन व्हाई द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड बी ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड नॉट ऑफ स्टील. द आंसर वाज एग्जैक्टली गिवन टू द पैराग्राफ. स्टिल सम ऑफ यू हैव जस्ट कॉपीड इट फ्रॉम गूगल एंड दिस वाज रॉन्ग. ठीक है, ये चीज आप समझो. आपको गूगल से अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि टीचर को समझ में नहीं आता है. आपको पैराग्राफ में साफ साफ सेकंड लाइन में आंसर दिया हुआ था that when we stop the current through the coil, the magnetic field lines diminish in soft iron core. Why this is not as in the same of the case of steel? Steel में ऐसा नहीं होता है. There is still some magnetism even after the current stops flowing through the coil of electromagnet. So इसका आंसर आपको थर्ड एंड सेकंड लाइन में दिया हुआ है पैराग्राफ के. Similarly, D part was explain why an electromagnet is called temporary magnet. ये तो सबको पता होगा, लेकिन इसके बाद भी कुछ बच्चों ने इसे गलत किया है. Why it is known as temporary magnet? Very good. So you know that
and once the current stops into the circuit, the magnet again just behave like a soft iron core or a rod. ठीक है, अब आते हैं MCQs पे, जो MCQs पूछे गए थे. क्वेश्चन नंबर 5. बेटा इतना कंफ्यूजन मैंने जब आपको बताया था तभी मैंने कहा था कि एग्जाम में ऐसे MCQs आएंगे और आप कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन स्टिल मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट कंफ्यूज्ड. द क्वेश्चन वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस around a straight current carrying conductor is given by. first of all magnetic field पूछा था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा था, तो मैंने आपको बताया था M means Maxwell's right hand thumb rule, और most of the students have corrected option B, Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule तो बेटा पढ़ा भी नहीं है अभी आपने. So the options were Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule, right hand thumb rule, and both A and B. So the correct option was C, right hand. Yeah, but काफी बच्चों ने इसको Fleming's right hand rule किया, which was wrong. इसमें आगे मैक्सवेल नहीं लगा था, लेकिन आपको पता है कि आप इसमें थंब से डायरेक्शन बताते हो. इट इज राइट हैंड थंब रूल, और आपको याद होगा इसको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, रिमेम्बर. तो ये क्वेश्चन आप बहुत बच्चों ने गलत किया ये. एंड क्वेश्चन नंबर 6, ओनली 2 और 3, जितना कॉपी मैंने चेक किया 10th आया, ऑल चेक द कॉपीज, 10th बी की भी मैंने काफी कॉपीज चेक करी है. तो क्वेश्चन नंबर 6 में आई थिंक हार्डली 3 or 4 स्टूडेंट्स हैव opted the correct option for question number 6, and all of you are incorrect. The question was light traveling from a denser medium, एक medium है यहाँ पे denser medium, and there is a rarer medium, it is normal. Question में दिया हुआ था, no, it is wrong. Light traveling from a denser medium to a rarer medium along a normal to the boundary. अब ये देखो लाइट रे जो है वो अलोंग द नॉर्मल आ रही है बाउंड्री के ऊपर, 90 डिग्री पे आ रही है. आप लोगों को लगा कि वो मतलब इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी. नहीं, आपको पहले सेंटेंस समझना था बेटा. सेंटेंस में दिया था लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम अलोंग द नॉर्मल. ये जो नॉर्मल है इसी के अलोंग बाउंड्री को क्रॉस कर रही है. आपको पता है whenever the light ray is perpendicular to the boundary, it does not deflect or does not refract. ठीक है, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, वो सेम पाथ के अलोंग पास आउट हो जाएगी. तो करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, इज नॉट रिफ्लेक्टेड. और ये सिर्फ 3 या 4 बच्चों ने सही किया है, इज नॉट रिफ्लेक्टेड. ठीक है, ये आपको जब बताया गया था तब बताया था कि अगर कोई भी बाउंड्री के अलोंग अगर 90 डिग्री पे कोई लाइट रे पास करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो दैट लाइट रे डज नॉट डिफ्लेक्ट और डज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द अदर मीडियम. नाउ समझ में आ गया क्वेश्चन वाला? अभी आपके प्रीबोर्ड्स होंगे, प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट. प्रीबोर्ड्स में भी 80 मार्क्स के पेपर्स आएंगे और पूरा फुल कोर्स आएगा. तो अब ऐसे ही क्वेश्चंस लैंग्वेज चेंज हो के आएंगे, तो आपको समझना है कि यू डोंट हैव टू डू दीज सिली मिस्टेक्स. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 was the amount of heat H produced in a resistor R carrying the current I and having a potential difference V across it in a time small t is given by the formula. अच्छा, काफी बच्चों ने ऑप्शन डी करेक्ट किया है, दैट इज आई स्क्वायर अपॉन आर टी. अगर आपको पता हो तो दिस इज रॉन्ग. द फॉर्मूला इज एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. मल्टीप्लीकेशन में होता है ना कि डिविजन में. तो आपको ऑप्शन वन करेक्टली देखना था, और ऑप्शन में ये तो गिवन था ही नहीं. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज एच इक्वल्स टू वी आई टी. क्लियर? दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. और काफी बच्चों ने इसको देख के ना, आप लोग या तो फॉर्मूले आप रटते हो या आप समझ नहीं पाते हो, काफी बच्चों ने बी ऑप्शन करेक्ट कर दिया. उनको लगा होगा दैट इज बी इक्वल्स टू आई आर टी. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी among all the 4 options given. और 1-2 बच्चों ने तो इसको अटेम्प्ट भी नहीं किया. आपने इनका फॉर्मूला नहीं पढ़ा था. You all have, I think I was not there, but Manjulika has taught you this whole thing. And हमने रिवाइज तो किया ही था. ओके, चलो अब आप क्वेश्चन या
Any doubt? Now question number 13. Class 10 be workup. अब आप लोग क्लास में थोड़ा एक्टिव हो जाओ because there is no more time. आपके प्रैक्टिकल्स हैं नेक्स्ट, और हाँ इस वीक में आपको एक एक्टिविटी भी दूंगी बिकॉज ऑफ फिजिक्स एक्टिविटी वॉज शेड्यूल ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, तो वो तो हो नहीं पाई. तो मोस्ट प्रोबेबली टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम एक्टिविटी. यू हैव टू डू दैट एक्टिविटी एंड हैव टू सबमिट मी बिकॉज योर इंटरनल मार्क्स आर डिपेंडिंग ऑन देम. फर्दर यू आर हैविंग 3 प्रैक्टिकल्स, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स ऑफ CBSE, तो वो भी आपके वीडियोस रिकॉर्ड करके हम आपको बताएंगे, समझाएंगे. एंड मे बी सम सॉफ्टवेयर मोड वी हैव टू मेक यू डू द प्रैक्टिकल्स ऑल्सो. आपको इतना पता ही होगा स्कूल में भी खुल जाए 15th अक्टूबर 31st अक्टूबर के बाद स्कूल खुलने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में असर्शन दिया हुआ था. असर्शन वाज अ रेक्टेंगुलर आयरन रॉड हैज बीन मैग्नेटाइज्ड by keeping it in a uniform magnetic field. It is true or false? पहले ये बताओ, assertion was true or false? A magnetic, yes, it is true. Now reason was a magnetic field can be produced by a straight carrying conductor, a straight carrying wire. Reason अपने भी जो statement reason में दिया हुआ है, that statement is correct or not? A magnetic field can be produced by a straight current carrying wire. It is true or false? It is true. आपको पता नहीं है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है. हैव यू रिमेंबर दिस? रीजन भी करेक्ट था. हाँ, यस, assertion was correct, reason was correct, but reason is not a not a correct explanation for assertion. तो इसका correct option है option B. Clear? Both A and R is true and R is not the correct explanation of A. Clear? चलो, this is the part A or section A of the paper. Now come to section B. अच्छा, एक बात और मुझे बतानी थी आप लोगों को. मैंने कॉपीज चेक करी हैं एंड आई हैव सीन मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट इवन नो हाउ टू मेक अ लेंस. आप लोगों ने ऐसे लेंस बनाए हैं, इट्स जस्ट लाइक अ ओवल शेप. ऐसे लेंस नहीं होते हैं. यू हैव टू यूज अ प्रॉपर कंपास. आपको कंपास यूज करके तब लेंस बनाने थे, ठीक है. यू आर हैविंग ऑल ज्योमेट्री आइटम्स विद यू. आपको पता है, और रे डायग्राम जो आपने बनाए हैं, यू हैव नॉट मेक इवन एरोस के रेस कहाँ से किधर जा रही है, कोई एरोस ही नहीं है. जहाँ पे एरो नहीं है, आई जस्ट डिडक्ट द मार्क्स. और आपके मार्क्स ऐसे ही बोर्ड पे भी कटेंगे अगर आपने लेंस का डायग्राम गलत बनाया है. इफ यू हैव नॉट मेक द एरोस की लाइट रेस कहाँ से किधर जा रही हैं, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. क्योंकि रे डायग्राम के ही मार्क्स होते हैं और आपने रे डायग्राम इतने खराब बनाए हैं. मतलब मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट ओके, बट काफी बच्चों ने बहुत ही ज्यादा खराब बनाया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, सेक्शन बी. Section B, question number 22. It is desired to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 12 centimeter. ठीक है? What should be the range of the object distance in the above case? आपको पहले ही बता दिया गया है. It is a concave mirror जिसका focal length कितना दिया है आपको? 12 centimeter. This is the focal length. और आपसे बोला है इस मिरर में हमें erect image चाहिए. We want an erect image. आपने 4 to 5 cases पढ़े हैं concave mirror में. आपको पता है all the image formed by concave mirror are inverted images. कैसी होती हैं? Inverted images होती हैं. Only in one case when the object is placed between, कहाँ पे place करते हैं आप? Very good. When the object is placed between pole and focus of the mirror, then only, तब क्या होता है? Then only the image is formed. कहाँ पे फॉर्म होगी? बताइए. Yes. Then only the image will be कैसी होगी image? Erect image होगी and behind the mirror होगी. और image का साइज कैसा होगा? Magnified. तो फर्स्ट केस का आंसर आपका क्या था? फर्स्ट आंसर विल बी बिटवीन पोल एंड फोकस. ये काफी बच्चों ने सही किया है. मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड.
या और यू कैन से 0 to 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बीच में इसकी रेंज होगी। बट काफी बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट इज व्हाट विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट? ड्रॉ अ रे डायग्राम। लार्जर, आपको पता है लास्ट केस है तो इमेज कैसी बनेगी? लार्जर बनेगी। एंड आप लोगों ने रे डायग्राम्स बेटा बहुत गलत बनाए हैं। थर्ड केस भी बहुत सिंपल था, ईच पार्ट इज ऑफ 1 मार्क, हर पार्ट एक एक मार्क का था इसमें, तो आपको स्टेप मार्किंग के थ्रू ही मार्क्स मिले हैं इसमें भी। वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड एट 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर? अब आपको पता है फोकस कितना है, फोकस इज 12 और आपका ऑब्जेक्ट रखा है 24 पे, 24 इज डबल ऑफ 12, तो आपको ये पता है दैट इज इफ दिस इज फोकस, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा पॉइंट हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी गुड, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो आपको ये भी पता होगा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट कैसा बनता है? ऑफ सेम साइज एंड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम साइज का बनेगा और कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसकी सेम साइड पे ही बनेगा। और साइज कैसा होगा? सेम साइज। और पोजीशन कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, ठीक है, इरेक्ट नहीं होगी, इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सी क्वेश्चन नंबर 23 यू आर हैविंग 2 पार्ट्स। सेकेंड पार्ट आप लोगों ने मोस्टली अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट पार्ट उन्होंने आई थिंक गूगल से यूज करके करा है। अगर आपने सारे इक्विपमेंट्स को पैरेलल में लगाया है, सपोज योर पेरेंट्स हैव कंस्ट्रक्टेड अ 2-room हाउस एंड यू वांट दैट in the living room there should be a provision of 1 electric bulb, 1 electric fan, a refrigerator, a plug point for appliances of 12 kilowatt. आपको सिंपली क्या करना था? सारे अप्लायंसेस को एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना था। आई हैव टोल्ड यू दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। तो आप क्या करते हो? आपको इसमें बस कुछ नहीं करना था, सारे वायर आपको सारे के सारे जितने भी दिए हुए थे, फैन, रेफ्रिजरेटर एंड द प्लग, यू हैव टू पुट ऑल देम इन parallel combination, then you have to connect it with the electric battery of 12 kilowatt. उसके बाद इसमें 2 वायर्स पूछे गए थे ना, सिंस द वायर्स आउट ऑफ ए कोर्स तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, अदरवाइज एक लाइट वायर इधर लगना था और एक अर्थ वायर इन दोनों में जाकर लग जाता, ठीक है। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनता। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, करेक्टली अटेम्प्ट किया है, दे गेट फुल मार्क्स। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 23 द सेकेंड पार्ट वाज State Ohm's law, how can it be verified experimentally? देखो बेटा इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको 23 का ही बी पार्ट है, आपको इसमें से b is directly to I and then b equals to IR। प्रॉपर आपको लिखना था डेफिनेशन, आपको ये बताना था अंडर विच कंडीशंस Ohm's law is valid। आपको पता है when the temperature, meaning temperature and pressure and the other conditions are kept constant, then only Ohm's law is valid। और इसमें आपको ग्राफ बना देना चाहिए था, आप एक सर्किट बना के शो करना चाहिए था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट डन दैट, स्टिल आई हैव गिवन यू 1 मार्क, क्योंकि आपने अगर लिखा भी है तो आई हैव जस्ट गिव यू 1 मार्क फॉर द करेक्ट डेफिनेशन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर Ohm's law। नाउ सेकेंड पार्ट, व्हाई इज पैरेलल अरेंजमेंट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। ये सबने मेरे ख्याल से कॉपी करा है, सबको ये कुछ आंसर अच्छे से आता है जो भी है, बट सबने करेक्ट किया। मोस्टली ऑल ऑफ यू हैव बीन अटेम्प्टेड इन करेक्ट वे। द करेक्ट आंसर इज ऑल अप्लायंसेस वर्क एट सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। अगर आप सारे अरेंजमेंट्स को पैरेलल अरेंजमेंट के थ्रू लगाओगे सारी डोमेस्टिक वायरिंग को, तो क्या होगा? सभी सारे ही डिवाइसेस को एक इक्विवेलेंट और एक सेम वोल्टेज मिलेगा। एंड नंबर 2, अगर कोई भी डिवाइस खराब होता है तो वो वाला सर्किट ब्रेक हो जाएगा इंस्टेड ऑफ अदर सर्किट। अगर आपका कोई भी डिवाइस फ्यूज हो जाता है या खराब हो जाता है तो वो वाला सर्किट तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन बाकी सब में वोल्टेज पहुंचता रहेगा और बाकी सब डिवाइसेस काम करते रहेंगे। दैट इज व्हाई वी प्रिफर पैरेलल अरेंजमेंट इन डोमेस्टिक वायरिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, आप लोगों को सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बनाना नहीं आता। सोलेनॉइड सबने लिख लिया था, लेकिन सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी आप सब लोग भूल चुके हैं। आप लोगों ने एरोज गलत लगाए और एरोज से मार्क्स मिलते हैं, इससे पता चलता है कि आपको कितना आता है, ठीक है।
तो अगर आपने एक एरो 10 लिखा है, एक एरो 10 लिखा है, तो यू विल गेट 0। ठीक है, आपको एरोस बेटा बिल्कुल करेक्ट दिखाने थे। अगर आप इनवर्ड से आउटवर्ड ले जा रहे हो, आउटवर्ड से इनवर्ड ले जा रहे हो, जिस भी डायरेक्शन ले जा रहे हो, आपको डायरेक्शन रखना है ध्यान कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो द 2 पोल्स। आपको पूरा सर्किट बनाना था, 2 पोल्स बनाने थे, और उसके बाद करंट फ्लो करते हुए दिखाना था। इफ यू आर टेकिंग दिस एज नॉर्थ पोल, तो सारे डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होने चाहिए थे और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। ठीक है, सिमिलरली ये नॉर्थ है, तो यहाँ से आप एरो देख रहे हो, डाउनवर्ड में भी नॉर्थ से साउथ ही जाएंगे, एंड इनसाइड साउथ से नॉर्थ। दिस इज द करेक्ट डायग्राम फॉर सोलेनॉइड। आप लोगों ने सोलेनॉइड का डायग्राम बहुत खराब बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑन व्हाट फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन अ सोलेनॉइड। सबको पता है B is directly proportional to the current, amount of current and number of turns। तब भी बच्चे ये गलत करके आए, इतनी बार समझाया था, इतनी बार पढ़ाया था बेटा, फिर भी। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। Since you are having less time for preparation, but this time प्री बोर्ड्स, अब आपके प्री बोर्ड्स ही होंगे नवंबर से, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। फिजिक्स का कोर्स ऑलमोस्ट खत्म है, ऑलमोस्ट पूरा कोर्स आपका खत्म हो चुका है। अब अगर कोई एडिशनल टॉपिक बचता है तो वी विल जस्ट रिवाइज दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में सबने सही से अटेम्प्ट कर लिया, आई डोंट नो हाउ, पर आप लोग आंसर थोड़े हिले हुए थे। उसमें एक क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी, और आपको दिया हुआ एक लेंथ ऑफ वायर है, उसको आपने 4 पार्ट्स में कट कर दिया है, 1, 2 एंड 3 एंड 4। आपको सभी उसकी टोटल रेजिस्टेंस R थी। आपको पहले बताना है रेजिस्टिविटी, जो न्यू पीसेस हैं उनकी क्या रेजिस्टिविटी होगी। Now you know that resistivity does not depend on the nature of material. So resistivity will not change, does not change, it does not change. आप उसके चाहे कितने भी पीसेस कर लीजिए, लेकिन जो भी इसका जो पार्ट होगा, that resistivity does not depend on that. ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट था find the resistance if all these parts are connected in parallel। पैरेलल में आपको पता है 1/r total is equals to how much, r की ले लीजिए,